welcome you all on the guest lecture for all the courses of MCIT and SOL. We are privileged to have Ms. Pavni Sharma, Junior Trainer, Sakshi Foundation, to guide us through. We are also honored with the presence of our Director General, Dr. Yugam Chaturvedi, our Dean Management Commerce and IT, Dr. Neha Mittal Bhaskar. I also welcome all the students present over here. So it's time for national anthem. Now I request the gathering to kindly stand up in the honor of national anthem, please. Thank you everyone. You may take your seats. A leader is one who knows the way, goes the way and shows the way. On this note, I welcome our mentor and guide who has in old times not only motivated us but paved a way for us in every difficult situation. A master's in economics from the prestigious Delhi School of Economics, University of Delhi. Sir is associated with CPJ College for more than 10 years now and in bringing such rich laurels to the college in diverse areas. The students' community is benefited by his guidance and pre-placement talks which gear them for placements in the corporate and the legal world. With his support, hard work, motivation and passion, the college has become one of the leading institutes in Delhi. With this brief, it's our honor to invite the embodiment of college, Dr. Yugam Chaturvedi, Director General, to kindly grace this guest lecture. We welcome you, sir. Thank you so much, Ms. Bharti, and good morning to everybody here. Welcome, Ms. Pavni Sharma. Thanks for making it to CPJ College, and I'm sure that your lecture, your address, so-called workshop as it's been said, on the POSCO Act 2012 and gender equality is going to show some good light to all our students here. And this is, I would say that as I feel students from law as well as non-law here, right? Which is absolutely what was required to be done, because this is nothing, as such the act is a legal act, but when you talk about it, it is applicable to anyone and everyone. Every household, every individual. This is prevention of crime and something? Sexual offense against children, right? So, very frankly speaking, students try to understand. Awareness is very important in life. At times what happens, one gears up and does something without not knowing that what could be the consequences of it. Very frankly speaking. कई बार ऐसा होता है कि आप कोई कृत्य कर जाते हैं, मैं इतने बड़े उसकी बात नहीं कर रहा कि जहाँ पर POSCO अप्लाई हो जाए, एक जनरल लाइन में बात कर रहा हूँ कि आप सड़क पे चलते हुए आपने एक जेस्चर भी दिया, which is not a very right gesture to maybe a passing female, that may also invite very big trouble for you. Believe me.
any kind of a remark being made, and if that is a sexist remark, again you would be under great trouble. Applicable on both the genders. So students must understand जो आज की लाइफ है, आज का जो सारा वर्किंग है, और जिस तरह से हमारी पूरी एक लाइफस्टाइल है और एक कंप्लीट शेड्यूल जैसे चलता है, उसको देखते हुए ये चीज दिमाग में लानी बहुत जरूरी है कि व्हाट इज व्हाट, क्या करना ठीक है और क्या करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है. It can literally, can invite a very big trouble for anyone, and to such an extent कि किसी का अच्छा खासा बनता हुआ करियर हमेशा के लिए खत्म हो सकता है. You know one thing that if today I just got my passport, I just could tell you one thing, something very important. I just got my passport renewed. I have a passport which was being made good, nearly 50 years back. And this was the 4th or 5th or 6th renewal of it. And of course, last 10 years के बाद जब वो खत्म हुआ, very frankly speaking, last 10 years is in my life, I have traveled the least. तो मुझे बड़ा दुख सा हुआ उस पासपोर्ट को देख के कि उसमें वीज़ा बहुत कम लगे हुए थे. उसके पहले के पासपोर्ट्स को मुझे डुप्लीकेट बनवाने पड़ते थे बिकॉज इतनी जल्दी पेजेस भर जाते थे. I used to be traveling so much. But believe my words, जब वो पुलिस का एक को आया जो कि रिन्यूअल था, रिन्यूअल में कोई चेंज नहीं था, नो एड्रेस चेंज, nothing was being changed in that. So the moment the guy came, he said everything, all details absolutely same. Yes, absolutely no change in address, nothing. He still said during this time of last 10 years after the last passport बना अभी कोई आपके अगेंस्ट कोई FIR तो नहीं लॉन्च हुई, कोई किसी तरह का ऐसा पुलिस में कंप्लेंट तो नहीं हुई जिसमें FIR हुआ हो या कोई केस दर्ज किया गया हो कोर्ट में etc. I said no, not at all. He said okay. मैंने कहा जब वो बोला are you very sure, मैंने कहा आपको डाउट हो रहा है क्या, why you doubting, it is an integrity question. So like I'm replying to nothing like that please. He said no. अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं जिनके घर गया, कोई बड़े सज्जन व्यक्ति थे, उनसे मैंने कहा है बात, और जो करने के बाद जब मैं कहीं और गया तो उन्होंने मुझे बताया उस नेबरहुड में कि उनके खिलाफ तो पीछे केस हुआ था, आप वहां से अगर आ रहे हैं तो बोले कि आई इमीडिएटली उनके घर पे बैठे, उनके पास एक सॉफ्टवेयर है दिल्ली पुलिस का विच इज ऑल ओवर इंडिया का है वो. द मोमेंट यू लॉग इन टू दैट एंड द मोमेंट यू पुट दैट पर्सन्स नेम, नाम भी सेम हो सकते हैं, किसी व्यक्ति के इंडिया में 25 लोग सेम नेम के हो सकते हैं, देन यू पुट द फादर्स नेम, देन यू पुट द मदर्स नेम. अब 3 चीजें बिल्कुल सेम हो रही हो, बड़ा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हो सकता है. सो 3 चीजें डालने के बाद immediately in the last so many years, even if there is one case, whether it was a police case or an FIR or there was a some kind of a petition being lodged or serious in the court against you, वो सारे details उसी वक्त आ जाते हैं. और he put my name also, देखिए मैं आपको प्रूव करता हूँ, he put my name, no case, nothing like that. So my dear students, please take it very seriously. In the sense, you wish to travel in life, passport नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा. आपको गवर्नमेंट सर्विस जैसी चीज में अगर आपके खिलाफ एक बार once in life you have an arrest thing being done against anything, you are absolutely ruled out from the government service. Absolutely ruled out. You can never apply in the government. And lots other things like this. So my dear students, like children to me, please be very, very careful कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सोच कर करिए, because every action, as I say, has a consequence. And you should always be aware of the consequences before you, and your actions should absolutely be in adherence to that, please. Okay? So won't say much. We have a very, very important topic which would be addressed by Pavni ji, and I'm sure that you will learn a lot out of it. And the college would keep trying, making such people come over here to our college who can address you on certain very important issues like this, so that you are able to gain your wisdom and knowledge much more to what it should be. Thank you so much and take care. Thank you. Yeah. Thank you so much, sir. Please stay back for felicitation.
along with, now I request the guest, Ms. Pavni, kindly come upon the stage for the felicitation along with Dr. Jyotna Sinha ma'am and Dr. Neha. Next stand little bit here, otherwise this will be delayed. Yeah, please. So, ma'am. On behalf of the students, please. Small photograph for you. Thank you so much, sir, and thank you so much, ma'am. Welcome of the guest, Ms. Pavni Sharma, is an integral member of the Sakshi team since 2021. She embarked on her journey as a Rakshi, wholeheartedly committed to the Rakshi project mission of preventing gender-based violence and child sexual abuse. Over time, Ms. Pavni has progressed within the organization and now proudly holds the role of a trainer. Through her life or through her work at Sakshi, Pavni had found deep fulfillment in contributing to essential conversations, driving positive change and equipping others with the knowledge and skills required to foster safer environments, particularly for women and children. Pavni has notably conducted impactful webinars and workshops in colleges, spreading awareness and empowering the youth to actively combat gender-based violence and child sexual abuse. Her enthusiasm for these ongoing initiatives drives her, and she eagerly anticipates further collaborative efforts toward a world free from such violences. We welcome you, ma'am. Now I hand you over the stage to Ms. Pavni Sharma. Hi everybody, how are you? कैसे हो सब? Thanks. I got one thumbs up, so thank you. So thank you for the welcome, so kind of you. And कितने यहाँ पे law के students हैं? काफी ज़्यादा. तो आपको मेरे से ज़्यादा पता होगा about FOXO. तो किसी को कुछ बोलना है रिगार्डिंग FOXO या हम सीधा स्टार्ट करते हैं एंड देन बीच बीच में अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना हो तो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम. Sakshi NGO works regarding prevention. We all have heard prevention is better than cure, right? But एक practical example लेते हैं. So for example, मैंने आज आपको बताया कि we need to save water, पानी बचाओ.
और कल को आपने देखा कि कोई टैप खुला है, टैप मतलब नल का नल, और उसमें से पानी बह रहा है, तो आप क्या करोगे? बंद कर दोगे। बट अगर आपको बंद करना नहीं आया तो आप क्या करोगे? हाँ, हेल्प, ओके, नहीं, देयर इज नो हेल्प, आप क्या करोगे? कोशिश, ओके। स्टोर, किसने बोला स्टोर करेंगे? यस। सो बेसिकली अगर हम इसको डिकोड करें तो मेरे कहने का मतलब है कि नलके को बंद करना इज प्रिवेंशन, लेकिन अगर आप प्रिवेंट ही नहीं कर पाए तो आप उसके नीचे एक बाल्टी रख देंगे जिसकी वजह से वो स्टोर हो जाएगा, दैट इज क्योर, राइट? तो सबसे पहला स्टेप शुड बी प्रिवेंशन। अगर आपसे प्रिवेंट नहीं हो पा रहा है और नुकसान हो गया है तब आप क्योर करते हैं। सेम विद चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। अगर एक बच्चे का अब्यूज हो चुका है, उसके साथ नुकसान हो चुका है, द अब्यूज के साथ जो जो चीजें उसको आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल एंजाइटी, डिप्रेशन, ट्रस्ट इश्यूज, उसको आप क्योर करने लग जाते हैं विद द हेल्प ऑफ थेरेपी। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आपको प्रिवेंट करना ही आ जाए तो उस बच्चे को उन सब के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा। डू यू ऑल एग्री? एम आई मेकिंग एनी सेंस? राइट? सो वी नीड टू फोकस ऑन प्रिवेंशन, राइट? एंड प्रिवेंट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या बिहेवियर्स है ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, ताकि हम एकदम से इंटरप्रेट कर पाए कि अरे दिस इज एन अब्यूज, वी नीड टू प्रिवेंट इट। सो बच्चे के साथ अगर एक बार अब्यूज हो गया तो ऑफ कोर्स हम उसको कंसोल करेंगे और उसकी थेरेपी में उसको भेजेंगे या खुद समझाएंगे, दैट इज द पार्ट ऑफ क्योर। बट क्योर तभी हो पाएगा ना जब उसके साथ वो एक्चुअली हो गया और हम उसके साथ वो होना नहीं चाहते। सो द ओनली ऑप्शन वी आर लेफ्ट विद इज प्रिवेंशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन प्रिवेंशन, राइट? छोटा सा ट्रिगर वार्निंग है because we are going to talk about abuse and assault, so there is going to be a little bit of detailed discussions on this touchy topic. So मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर it is not very pleasant to hear about assault and abuse, it is not a very pleasant conversation to have, but still we need to talk about this is so necessary to be discussed. So छोटा सा ट्रिगर वार्निंग कि अगर आपको थोड़ा सा कुछ अनप्लेजेंट लगे, you can go out and then please make sure to come back because this is an important information you need to have. So आज का एजेंडा देख लेते हैं। Everything, कोई भी सोशल टॉपिक आप उठा के ले लीजिए, we start with equality, and I'll let you know कि why do we start with equality. We are going to then move forward with the concept of consent culture. So what do you think what consent is? या अगर हिंदी में इसका मैं अनुवाद करूं so सहमति, चीज से एग्री होना, सॉरी, चीज पे एग्री होना, हाँ, किसी से एग्री होना या किसी की परमिशन लेना या किसी का पॉइंट ऑफ व्यू जानना या किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करना, this is all come, this all comes under consent culture. अगर मैं इसको अब्यूज से रिलेट करूं, so when it comes to sexual activities, when it comes to sexual interactions, do you think consent is necessary? How many of you think consent is necessary? Of course, in sexual activities we need consent from the people involved in that sexual activity, right? And if there is no consent, what is it termed as? Abuse. So अगर आप एक sexual activity में से consent निकाल दो, so it takes the form of abuse. And if I'm talking about abuse, that is the top tier of rape culture. अब rape culture एक pyramid की तरह है. जरूरी नहीं है rape culture means the literal activity of rape. Rape culture starts from the place where you don't respect the opinion of the person, right? Consent हर एक activity में है, not only when it comes to sex, but in every activity, even this workshop.
आपका कंसेंट है, आप यहाँ आए, आप मेरे से बात कर रहे हैं, मेरा कंसेंट है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, तभी ये हो पा रहा है। ना आपके साथ जबरदस्ती हुई है, ना मेरे साथ जबरदस्ती हुई है, राइट? सो इन एवरी एक्टिविटी कंसेंट इज प्रेजेंट, बट द प्रॉब्लम इज कि व्हेन इट कम्स टू सेक्स और जब वहाँ पे कंसेंट नहीं होता है, इट टेक्स द फॉर्म ऑफ अब्यूज. And we need to learn what consent culture is and how can we inject that consent culture in our present patriarchal society, which follows somewhat rape culture. Do you all agree? Yes, ma'am. Right? Then POCSO, of course, sir also mentioned everybody needs to know POCSO irrespective of your background, even if it's of law or non-law, everybody should know. Then barriers. Even now, the POCSO Act is very strong. जो भी इसमें amendments आया 2019 में या जो 2012 में आया, उसमें जो हमें चीज़ें मिली POCSO Act के अंदर, हमें पता चला कि ओके, अब तो ठीक रहेगा, अब एक बच्चा, हर बच्चा सुरक्षित रहेगा, बट ऐसा नहीं हुआ. कुछ बैरियर्स मतलब रुकावटें अभी भी है, जिसकी वजह से we are not able to stop child sexual abuse. And if we are not able to stop anything, if we are not able to prevent anything, we try to cure it. So we try to give safe spaces and resolution mechanisms to children. And on ground level only, मतलब as in आप अपने personal level पे भी how can you provide safe spaces to children and to your friends? So we all know Sakshi is the host of the webinar or this workshop. 1992 से साक्षी काम कर रहा है regarding child sexual abuse and abuses that happen at workplaces. Moving ahead, so जिस project के द्वारा हम आप तक पहुंच पाए, the project is known as the रक्षित project. रक्षित एक हमने अपना वर्ड निकाला है, एक होता है रक्षक होता है प्रोटेक्टर, लेकिन रक्षित का मतलब होता है प्रिवेंटर. तो हमें रक्षण से डू यू वांट टू से समथिंग? नो? अगर किसी को कुछ बोलना है, प्लीज फील फ्री टू इंटरप्ट, प्लीज फील फ्री टू रेज योर हैंड एंड से व्हाटएवर यू फील लाइक. सो जब लॉकडाउन हुआ, वी थॉट कि एवरीबॉडी इज सेफ, हर एक बच्चा सेफ है, बट देन ऐसा नहीं हुआ. हेल्पलाइन नंबर्स पे बहुत ज़्यादा तादाद में फ़ोन कॉल्स आने लग गए. कभी किसी महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस, कभी किसी बच्चे के साथ अब्यूज, कभी किसी आदमी के साथ, आदमियों के साथ भी होता है, लेट मी मेंशन दैट. एंड तो हमें लगा कि घर सेफ नहीं है, एंड वी स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट ऑनलाइन. वी नीड टू मेक होम एवरी we need to make every home a safe space, especially for children, right? And तो हमारा एक MOU साइन है with Ministry of NSS and Sports, जिसके द्वारा हम 40,000 कॉलेजेस और 40 लाख स्टूडेंट्स तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. So I have this question that why you? I am talking about, we talk about child sexual abuse that happens with children. Then why are we talking to the youth of the country? Why aren't we talking to the children or to the parents of the children? Anybody? मैम उनकी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए ताकि प्रिवेंशन में ज़्यादा हेल्प हो. I'm not able to. Yes. मैम ताकि हमारी नॉलेज ज़्यादा इंक्रीज हो, सोसाइटी में ज़्यादा नॉलेज हो, सबको नॉलेज हो, और उसके प्रिवेंशन के लिए वो सबसे ज़्यादा जरूरी है. Absolutely. Meeting a lead as of now. Please carry. Thank you so much, sir. Anybody else? So you said that the youth can prevent it, not the adults. मैम ऑल्सो अडल्ट ऑल्सो. आपने कहा ना कि पेरेंट्स से हम क्यों बात कर रहे जी, हैं, वो हाँ. उसी में आ गया कि नॉलेज इंक्रीज करने के लिए ताकि वो प्रिवेंशन में उनकी हेल्प. Right. Okay. Thank you. Anybody else? Yes, please. मैम बिकॉज अभी एडोलेसेंट मैम बिकॉज अभी एडोलेसेंट एज है, तो हमें पता
नहीं होता है, कभी अनजाने में किसी से गलती हो जाती है, तो दैट्स व्हाई जस्ट टू प्रिवेंट दैट राइट। तो दोनों ने और अलग पर्सपेक्टिव रखे। एक ने कहा कि हम अच्छे से समझ पाते हैं, एक ने कहा शायद मुझसे भूल ना हो जाए, इसलिए हमें समझना जरूरी है। एंड दोनों चीज़ें सही है। द ओनली पॉइंट इज फर्स्ट थिंग कि आप वी आर इन दिस एज ग्रुप जहाँ पे हमारा जो माइंडसेट है दैट इज अ बिट फ्लेक्सिबल। डू यू ऑल एग्री? अगर आज मैं आपको कोई चीज़ बताऊंगी, कुछ समझाऊंगी, तो आपको आपके दिमाग में घुस सकता है वो। बट ऑन द अदर हैंड इमेजिन इफ अगर आपकी जगह ऐसे 60 की उम्र के लोग बैठ जाए, क्या वो समझ पाएंगे? क्या वो एक्सेप्ट कर पाएंगे कि उन्होंने जितनी अभी तक जिंदगी जी है वो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, थोड़ा अनसेफ सोसाइटी है और बच्चों के साथ अब्यूज हो सकता है? नो, राइट? ऑल्सो ऑन द अदर हैंड अभी हम इस एज ग्रुप में हैं जहाँ पे हम शायद कुछ गलती कर सके। इवन सर मेंशन कि एक गलती की वजह से बहुत सारी चीज़ें स्टेक पर आ जाती हैं। एंड वी नीड टू मेक श्योर दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल इनफ टू नो एवरीथिंग एंड टू कीप दिस सोसाइटी सेफ, राइट? अब बच्चों से भी नहीं बात करते हैं हम। इमेजिन मैं बच्चों को बोल रही हूँ कि आपके साथ अब्यूज हो सकता है या आपके साथ हो चुका होगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिवेंटिंग दैट अब्यूज फॉल्स ऑन द चिल्ड्रन, राइट? अगर मैं उनको बोलूँगी कि आपको बच के रहना पड़ेगा, तो क्या ये विक्टिम ब्लेमिंग नहीं हुआ? क्या मैं विक्टिम को ही नहीं बोल रही कि आप बच के रहो, राइट? तो बच्चों को हम नहीं बोल सकते कि आप बच के रहो, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपको इससे दूर रहना है, आपको उससे दूर रहना है। इससे हम उनका बचपना छीन रहे हैं। एंड दिस वेबिनार या दिस प्रेजेंटेशन इज सो डिटेल्ड कि बच्चा जैसे जैसे अटेंड करेगा वर्कशॉप उसको और डर लगता रहेगा। तो हमें उनका बचपना नहीं छीनना, हमें बड़ों की what do I say, ego hurt नहीं करनी। So let's just stick to the youth. You have come from childhood and you are going to enter in your adulthood, so you are the best audience we can have, right? I have one question. Yes. अगर दो चाइल्ड हैं, मान लो हमारे कंट्रीज में एज लिमिट क्या है अडल्ट की एवं 18, राइट? अगर एक 10 ईयर का है, एक 12 ईयर का है, एक 6 ईयर का बच्चा है, एक 12 ईयर का बच्चा है, अब वो सेक्सुअल एब्यूज हो सकता है, होता है, वैसे दो तरीके से साथ है। तो बच्चों को भी अवेयरनेस बहुत जरूरी है ना, उनको थोड़ा अवेयर हो। अगर 5 का बच्चा है, अगर उसमें अवेयर होगा तो उसका विकास करेगा ऐसे। तो बच्चों के लिए भी अवेयरनेस जरूरी है। तो वो ये नॉलेज अडल्ट के लिए नहीं, बच्चों के लिए आई थिंक Absolutely, sir. तो स्कूल में what I meant was कि हम स्कूल में जो करते हैं वो सेफ टच, अनसेफ टच, गुड टच, बैड टच तक करते हैं। What I जो मैं आज करूँगी वो बच्चों के साथ नहीं कर सकते। वो उनको वो बह जाएंगे, वो थोड़ा डर जाएंगे, वो हम नहीं रहना चाहते। छोटे बच्चों के लिए साथ बैड टच, गुड टच वाला प्रोजेक्ट होता है और ये अडल्ट के लिए, राइट? तो स्कूल में सबने गुड टच बैड टच का वर्कशॉप का अटेंड करा होगा ना, तो वहीं तक सीमित रहते हैं बच्चों के साथ। बिकॉज आई टेल यू व्हाई, जब मैंने बोला हम बच्चों को नहीं सिखाते बट हमें बच्चों को सिखाना पड़ता है, आई टेल यू व्हाई। फॉर एग्जाम्पल जेब्रा क्रॉसिंग है, मैंने सबको बोल दिया जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना है, दिस इज योर राइट, प्लीज गो एंड एक्सरसाइज, आपको कोई नहीं रोकेगा, देखते हो कौन रोकेगा। अब एक ट्रक मार के चला गया, आपको चोट किसको लगी? आपको, राइट? तो अगर मैं आपको इतना एग्रेसिवली बोल रही हूँ कि आपका राइट है, आपको प्रैक्टिस करनी है, बट स्टिल सोसाइटी वोंट लेट यू प्रैक्टिस, इसलिए मुझे आपको बताना पड़ेगा कि फिर भी आपको देख के चलना पड़ेगा। बट दैट इज माई कंसर्न, दैट इज नॉट विक्टिम ब्लेमिंग। फॉर एग्जाम्पल, टेक अनदर एग्जाम्पल, अगर मेरी बहन है, मेरी छोटी बहन अगर शॉर्ट्स पहन के बाहर जा रही है एंड आई नो 8 बज गए, दिल्ली है, अच्छा ज़माना नहीं है, तो मैं उसको बोलूँगी ना कि देखो मत पहन के जाओ, बाहर लोग अच्छे नहीं हैं, ये मैं बोलूँगी। दिस इज वेरी रियलिस्टिक।
अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसी को ब्लेम कर रही हूँ, क्योंकि कल को अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो दुख तो मुझे ही होगा ना। तो एक जगह तो मैं ये भी बोलती हूँ कि एक्सरसाइज योर पावर, बट एक जगह मैं ये भी बोलती हूँ कि प्लीज बी माइंडफुल, क्योंकि सोसाइटी एक्सेप्ट अभी नहीं कर रही है। धीरे धीरे वी नीड टू चेंज द सोसाइटी ताकि वो एक्सेप्ट करना शुरू कर दे। बहुत सारी न्यूज़ ऐसी भी फेमस हुई है कि कोई बस में if somebody is wearing a bikini तो उसकी पूरी फोटो आ जाती है ऑल ओवर इंटरनेट। शायद उसको वो अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट वो अपना फ्रीडम एक्सरसाइज कर रही है एंड स्टिल उसको इतना बैकलैश फेस करना पड़ रहा है। व्हाट डज दैट मीन? कि क्या वो कपड़े ना पहने? शायद अभी नहीं, अभी समाज को बदलने में थोड़ा टाइम है, थोड़ी देर बाद पहने। ऑल वी हैव टू डू इज स्प्रेड अवेयरनेस। अगर यहाँ पे 100 लोग बैठे और आज 4 या 5 लोग अवेयर होकर जाएंगे, तो वो 4 या 5 लोग में भी सोसाइटी को एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाए। इंक्लूसिव मतलब सबको इंक्लूड करने वाला, राइट? सो थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप लीडरशिप स्किल्स। बेसिकली द पॉइंट इज कि अगर मैं आपको एक एक्शन बनाना चाह रही हूँ विच इज द प्रिवेंटर ऑफ हार्म, एंड जो उसमें क्वालिटीज होती है और जो एक लीडर में क्वालिटीज होती है वो सेम होती है, राइट? हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे we'll be able to figure it out better. अब हम बात करते हैं इक्वालिटी की। Why do we always start with every social topic with equality? क्योंकि इमेजिन अगर दो लोग इक्वल है, राइट? अगर मैं समझ रही हूँ कि आप मेरे इक्वल हो और आप समझ लो कि सामने वाला आपके इक्वल है, तो हम दोनों इक्वल है ना। मैं आप पे हावी होंगी ना आप मेरे पे हावी होंगे। बट जैसे ही मैंने समझ लिया कि मैं तो इनसे ऊपर हूँ, so this gap is not the gap of inequality, is the gap of abuse. जो ऊंचे दर्जे पर इंसान है उसको लगेगा कि मैं नीचे दर्जे वालों पर हावी हो सकता हूँ, मैं उनको अब्यूज कर सकता हूँ, मेरे में शक्ति है इनको अब्यूज करने की। और जो नीचे वाला दर्जे पर इंसान है उसको लगेगा कि मैं इस अब्यूज को सहूँगा, राइट? तो दिस इज वाई हम लोगों को इक्वालिटी लानी पड़ेगी। अब आई हैव 2 questions. Does equality exist? If you think yes, then you have to raise your hand. And my next question is, क्या हम उस इक्वालिटी को प्रैक्टिस करते हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन अगेन, डज इक्वालिटी एग्जिस्ट? यस? रेज योर हैंड इफ यू फील यस। इट डज? अच्छे बोलो। Do you? Yes, please reply to ma'am's question. How many of you say that equality does exist? Please raise your hand so that she can see. Okay. यस एंड नॉट बहुत हो सकता है, हो सकता है कुछ केस में इक्वलिटी हो सकती है, इसमें नहीं हो सकती है ना। That means that those who haven't raised their hands don't believe that equality exists. जिन्होंने हैंड रेज नहीं करा है उनको ही लगता है कि इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। इसका मतलब यही है ना, विच इज द मेजॉरिटी ऑडियंस दैट वी हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम इस इक्वालिटी को एक्सरसाइज करते हैं? जिन्होंने हैंड रेज करा वो बताएंगे क्या हम उस इक्वालिटी को प्रैक्टिस करते हैं? हम उसी जगह वो चीज़ बोल रही है, बट कहीं ना कहीं भी सोशल डिफरेंस ज़्यादा है। राइट। सो हम 100% उसको प्रैक्टिस नहीं करते। 100% नहीं। सो लेट मी आंसर बोथ द क्वेश्चंस कि इक्वालिटी तो एग्जिस्ट करती है, राइट? हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू इक्वालिटी, बट डू वी प्रैक्टिस इट? नो वी डोंट। वी टेंड टू डिस्क्रिमिनेट, राइट? या फिर अगर हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को रिलेट करें, आई वुड लाइक टू हैव 2 people on stage, please. 2 volunteers. Yes, please come. Come. Please come back on volunteer. Yes, one more please. जाओ, कैसे जाओ?
Saksham. Saksham. Sham. Your name is Saksham now. Okay. And your age? No, कोई भी age. 18. Okay. You are 18 and your new name is Saksham. And what about you? My new name is Sayyam and age 18. Age 18. दूसरा एज ले लो, इन्होंने 18 ले लिया. Take 5 years. ठीक है. आप 5 साल के और आपने अपना नाम क्या बताया? सैयम. Okay. So the person in orange is Sayyam and वो 5 साल का है. And she is Saksham and वो 18 साल का है. There is nothing to laugh, please. Okay. So let's imagine Sayyam जो 5 साल का है is going through abuse. अब मैंने child sexual abuse के लिए बोला क्योंकि वो बच्चा ही है. So it is understood that it is the case of child sexual abuse. Okay. And Saksham जो सक्षम है 18 साल का, वो व्हील चेयर बाउंड है. व्हील चेयर बाउंड मतलब उससे खुद नहीं चला जाता, वो सिर्फ व्हील चेयर की हेल्प से चलता है. तो मुझे आप बताइए कि इनके दिमाग में क्या चलता होगा रोजाना की जिंदगी में. सो लेट्स स्टार्ट विद सक्षम जो कि व्हील चेयर बाउंड है. एंड जहाँ पे ये लोग खड़े हैं वो जिंदगी की दौड़ की लकीर है. राइट, लेट्स टेक इट दिस वे कि यहाँ से सबको आगे बढ़ना है, यहाँ से सबकी स्टार्टिंग है. और इनके दिमाग में क्या चलता होगा कि हम इक्वल नहीं हैं, या मैं ये नहीं खेल सकता क्योंकि मैं व्हील चेयर बाउंड हूँ, मैं फर्स्ट फ्लोर की क्लासेस नहीं ले सकता. एंड आप जो एक एक पॉइंट बताएंगे उस एक एक पॉइंट से ये पीछे एक एक स्टेप होते रहेंगे. टेक लॉन्ग स्टेप्स. ओके. सो बताइए सक्षम जो कि व्हील चेयर बाउंड है, 18 ईयर्स ओल्ड है, मे बी वो स्कूल या कॉलेज जाता होगा, तो उसके दिमाग में क्या चलता होगा? आप भी बता सकते हैं. मैम मैं खुद को बहुत ही अनलकी फील करूँगी क्योंकि वो जो है वो अपना पूरा एंजॉय कर रहा है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी कुछ भी कर सकता है. लेकिन क्योंकि मैं व्हील चेयर पे हूँ, मुझे किसी की हेल्प चाहिए, तो मैं किसी पे डिपेंड हूँ. राइट. वो इंडिपेंडेंट है उस चीज़ में, तो मैं बहुत ही हेल्पलेस फील करूँगी और खुद को थोड़ा दबा हुआ फील करूँगी. राइट. सो यू सेड 2 थिंग्स, अनलकी एंड डिपेंडेंट. टेक 2 स्टेप्स बैक. और कैसा फील करेगा सक्षम? Lower confidence. Take 1 step back. One last thing, please. Lonely. Take 1 step back. Okay. So let's go to Sayyam, जो कि 5 साल का है and going through abuse. बताइए. बताइए. डिप्रेस्ड. टेक 1 स्टेप बैक. What else, guys? What do you think that Sayyam should be apart from being depressed? Anxiety. Yes. Anxiety, another point. Anybody else from the audience? Apart from depression and anxiety, any other point that can come to your mind, that is coming to your mind in context of Sayyam?
चल जाएंगे आगे। क्या इनकी गलती है, इनके साथ ये हो रहा है? इस बच्चे की गलती है? क्या उसकी गलती है कि वो व्हील चेयर बाउंड है? नो, राइट? सोसाइटी की गलती है। तो वी नीड टू चेंज दैट। द पॉइंट इज हम इक्वालिटी प्रैक्टिस नहीं करते। दिस इज प्रूव्ड, क्योंकि इनको ये सब फील होगा, राइट? अगर हम इक्वालिटी प्रैक्टिस करें, बिकॉज दे आर स्टिल इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, बट अगर हम इक्वालिटी प्रैक्टिस नहीं करते, इसीलिए इनको इतना पीछे आना पड़ा कि मुझे अभी भी ऐसा फील होता है कि मैं बाकी सबसे इक्वल नहीं हूँ, क्योंकि मैं व्हील चेयर बाउंड हूँ, क्योंकि मेरे को अब्यूज हो चुका है, तो मैं इक्वल फील नहीं करता या नहीं करती। राइट? प्रूफ हो गया ना दैट वी डोंट प्रैक्टिस इक्वालिटी, क्योंकि अगर हम इक्वालिटी प्रैक्टिस करते हैं तो इनको अनइक्वल फील नहीं होता, राइट? Yes, we can have a round of applause. So that is why we say there is a line of equality. There is an imaginary line of equality जहाँ पे सब खड़े हैं, जहाँ पे मैं समझती हूँ कि मैं भी हूँ और आप भी हो। लेकिन अगर किसी बच्चे के साथ अब्यूज हो जाता है, उस लाइन से बहुत पीछे आ जाता है। Now let's start with our topic, that is child sexual abuse. Give me any random percentage. कितने प्रतिशत लोगों के साथ child sexual abuse हुआ होगा? 20? एक? One and two, that is 50%। मतलब अगर यहाँ पे 100 लोग बैठे हैं और सब 18 से ऊपर के हैं ऐसे, तो 50% मतलब 50 लोगों ने कभी ना कभी अपने बचपन में किसी ना किसी फॉर्म का अब्यूज सहा होगा, राइट? एंड इट इज अ बिग डील। उन 50 लोगों को लगता है कि हम आपस में इक्वली नहीं है, और हम उस लाइन से बहुत पीछे हैं। तो साक्षी ने केस लड़ा था। आई वुड लाइक टू एड्रेस दिस केस। आप इसका फोटो ले लीजिए एंड आई वुड वांट एवरीबॉडी टू रीड इट अप। लॉ के स्टूडेंट्स को अगर ये केस पता है तो आप बता पाएंगे इस केस में क्या हुआ था? श्रीमती सुदेश झापू वर्सेस केसी जैन अदर्स? नहीं? सो द पॉइंट इज, श्रीमती सुदेश झापू लड़की की मदर का नाम है जिसके लिए हमने केस लड़ा था, साक्षी ने केस लड़ा था। तो बात ये थी कि उस लड़की के फैमिली मेंबर ने ही उसको अब्यूज करा था, और हमें लगा ओपन एंड शट केस है, हम जीत जाएंगे, बट वी लॉस्ट द केस। वी लॉस्ट द केस बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ अब्यूज was very narrow. And what was that definition? Male organ penetrating into female organ. Male organ से मेरा मतलब है penis. Penetrating से मेरा मतलब है insert करना, मतलब घुसाना. Into female organ मतलब vagina. बस अगर ये हुआ है तो अब्यूज है, इसके अलावा कुछ और भी हुआ है तो वो अब्यूज नहीं है। Is it fair? No, right? क्योंकि बच्चे को अब्यूज करने के और भी बहुत तरीके हैं। ये तो यही हो गया कि लॉ ने बोलते बस ये मत करो, कुछ और करो, राइट? तो दिस हैड टू बी चेंज्ड। फिर एक PIL फाइल करी जिसमें हमें पॉक्सो एक्ट आया।
एक्सपैंडेड डेफिनेशन जो कि हमें चाहिए थी कि सिर्फ एक बिहेवियर को आप अब्यूज नहीं कह सकते, और वो जो बिहेवियर अभी मैंने डिकोड करा कि पीनस पेनिट्रेटिंग इनटू वजाइना, देन वो बस अब्यूज है और कुछ अब्यूज नहीं है। ये आप इसमें और भी चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेगी, एंड दिस इज व्हाई वी गॉट एक्सपैंडेड डेफिनेशन। चाइल्ड फ्रेंडली मेजर्स, कभी आपने इसमें कोट गए? आप गए हो? कैसा होता है एक्सपीरियंस? मजेदार? कैसा होता? यू हैव द माइक, बोलो। हाँ, कैसा होता है? हम थोड़ी कभी एंग्जाइटी होती है कोर्ट रूम को देखकर। सो इमेजिन अगर इनको एंग्जाइटी होती है तो बच्चे को कैसा फील होता होगा? जो केस था श्रीमती सुदेश जागू वाला, उसमें उस लड़की को रोज कोर्ट बुलाया जाता था, रोज उसके अब्यूजर के सामने उसको खड़ा किया जाता था और उससे पूछा जाता था कि बता क्या हुआ है तेरे साथ, अच्छा ऐसा क्यों हुआ है, तू कहाँ थी, तूने क्या पहना था? तो डोंट यू थिंक ये बच्चे को और ट्रिगर कर सकता है? एब्सोल्युटली। इसलिए चाइल्ड फ्रेंडली फीचर्स आए जिसमें कैमरा के थ्रू बच्चे की रिकॉर्डिंग होगी और वो चलेगा, बच्चा कोर्ट नहीं जाएगा। अकाउंटेबिलिटी, ओमिशन इज कमीशन। इसका मतलब है कि अगर मैंने देखा करा तो मैं भी गुनहगार हूँ। यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि कोई बच्चा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है और मैंने अपनी नजर घुमा दी, मैंने कहा मैं तो अपने घर भागू, मैं ठीक, मेरा बच्चा ठीक, मुझे क्या पता, मैं भी गलत हूँ, मेरे को अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। आवाज़ उठानी पड़ेगी से मतलब है आई हैव टू रिपोर्ट, और रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स भी दे रखे हैं विच इज पॉक्सो ई-बॉक्स, दैट इज ncpcr.gov.in या फिर चाइल्ड लाइन नंबर 1098, राइट? सबको याद रहेगा चाइल्ड लाइन नंबर 1098, ठीक है? अब दिस थिंग एक्सपैंडेड डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए कि और क्या क्या चीजें ऐड हुई है। Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, kindly explain 4 point again. Guys, I'm so sorry. मेरे को बहुत खांसी हो रही है. I hope it is not bothering you so much. Right. तो मैंने किसी ने 4 पॉइंट पूछा था, राइट? रिपोर्टिंग मैकेनिज्म का क्या ओमिशन इज कमीशन का? Ma'am, omission is commission. कभी इंग्लिश में वो करा है क्वेश्चन ओमिशन कमीशन वाला? Yes, ma'am. क्या होता है ओमिशन का मतलब?
अनदेखा करना कि कौन सा एडवर्ब या कौन सी आर्टिकल मिस हो रहा है सेंटेंस, राइट। ओमिशन का मतलब हो गया अनदेखा करना, कमीशन का मतलब हो गया कमिट करना, गलती करना। तो अगर आप किसी क्राइम को होते हुए देख रहे हो, आपने अनदेखा कर दिया, इसका मतलब आपने भी उस क्राइम को कमिट करा, ये मतलब हुआ। ठीक है। जब डेफिनेशन एक्सपैंड हुई, इसमें और भी बिहेवियर्स आए। We are going to talk about sexual exposure. You all know, अपने आप को बच्चे के आगे सेक्सुअली एक्सपोज करना या बच्चे को बोलना कि वो सेक्सुअली एक्सपोज है। बच्चे से मेरा क्या मतलब है? कौन सी कितनी उम्र होती है बच्चे की? 5 कितनी उम्र तक आप बच्चे हो? 18। तो 17 साल का बच्चा भी बच्चा है, राइट? देन बॉयलिज्म मतलब बच्चे को बिना कपड़े के देख के मजे लेना, बच्चे को नेकेड देख के। हमने बहुत देखा है बच्चे नेकेड बिना कपड़ों के इधर भागते रहते हैं, बचपने में रहते हैं, राइट? बट अगर कोई उसको देख के प्लेजर ले रहा है, then that is wrong, that is abuse. Invasive hygienic practices मतलब अरे मैं तो इस जगह को बस साफ रख रहा हूँ या रख रही हूँ, और जेनिटल्स को अटैक करना साफ करने के बहाने। फॉन्डलिंग, फॉन्डलिंग का मतलब होता है प्यार करने के बहाने अब्यूज करना। जेनिटल कॉन्टैक्ट ऑफ कोर्स, सेक्सुअल ह्यूमिलिएशन। कोई एग्जांपल देना चाहेगा सेक्सुअल ह्यूमिलिएशन का? Anybody? सेक्सुअल ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है कि किसी लड़की को बोलना कि तू लड़का है और किसी लड़के को बोलना कि तू लड़की है। ह्यूमिलिएट करना, बेइज्जती करना व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल एट्रीब्यूट्स। जैसे मान लो बाल छोटे लड़की के, तो उसको बोल देना कि तू तो लड़का लगती है, या अगर किसी लड़के ने नेल पेंट लगाई है तो बोलना कि तू तो लड़की है, चुड़िया भी पहने। So this is all sexual humiliation, right? Then any sort of threat, yeah, any sort of object penetrating or inserting into any part of the child's body is abuse. तो अगर इस डेफिनेशन से वो वाला केस लड़ा जाता तो हम जीत जाते, राइट? पहले क्या डेफिनेशन था? If penis inserting into vagina. अब है any object inserting anywhere. Now let's talk about sexual interaction. What do you mean by sexual interaction? Is it same as sexual abuse? What do you think? जब मैं सेक्सुअल इंटरैक्शन की बात कर रही हूँ, सेक्सुअल एक्टिविटी की बात कर रही हूँ, आई मीन सेक्स विद कंसेंट, ओके? दैट इज इंटरैक्शन। अब आई हैव 3 क्वेश्चंस फॉर यू। 2 एडल्ट्स, एडल्ट से मेरा मतलब है 18 साल से बड़ी उम्र के लोग, इन सेक्सुअल इंटरैक्शन विद कंसेंट, इज इट ओके? हाउ मेनी ऑफ यू से इट्स ओके? Then one adult, one child with consent. Let me give you an example. Typical example लेते हैं। 16 साल की लड़की है और 21 साल का लड़का है। They want to be in any sort of
Is it okay? लड़की कह रही है कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है, लव हिम, एंड लड़का भी कह रही है कि मैं आई एम रेडी। तो दोनों की तो कंसेंट है। Is it okay? How many of you think it's not? Why? Law के against है। How is it against the law? What does the law say? 18 plus about age with consent 18 plus. Exactly. So consent when it comes to sexual activities is only given by people who are above 18 or 18. तो बच्चे का consent when it comes to sexual activities is invalid. That's what you mean, right? Exactly. अब मैं बच्चे का consent when it comes to sexual activity बार-बार इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि बाकी जगहों का consent माना जाएगा। अगर मैं उससे पूछूं कि आपको आइसक्रीम खानी है और वो हाँ या ना बोले तो मैं उसकी कंसेंट की रिस्पेक्ट करूंगी। बट व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल एक्टिविटी वो हाँ बोले या ना बोले दैट इज स्टिल इनवैलिड, राइट? एंड हु इज गोइंग टू बी punished even if the child says yes? Who? बोलो बोलो। हाँ एग्जैक्टली द अडल्ट। लास्ट क्वेश्चन, दोनों ही बच्चे हैं एंड विद कंसेंट दे आर इन सेक्सुअल इंटरेक्शन, इज इट अब्यूज? अगर मैं इस क्वेश्चन में कंसेंट वर्ड नहीं डालती तो क्वेश्चन सही नहीं रहता ना, क्योंकि कंसेंट तो इनवैलिड है बच्चों का। एंड हु इज गोइंग टू बी एट फॉल्ट? Who is going to be held accountable? Parents, okay. बच्चों में से accountable कौन रहेगा? जो उम्र में बड़ा है, ये 4 साल से बड़ा हो, 4 महीने से या 4 दिन से। And Juvenile Justice Act के तहत हम उसके साथ डील करते हैं। Punishment, there is no punishment for the kids, there is no punishment for the children. We deal with them under Juvenile Justice Act, right? So we know कि even if I've heard people saying कि मैं अभी 17 साल का हूँ या 18 साल का नहीं हूँ, बस होने ही वाला हूँ, and then they get into sexual interaction, and it's very unpleasant to hear कि this is not love, this is rape, this is abuse. ये अच्छा नहीं लगता सुनने में, right? तो इसीलिए पहले से ही बी माइंडफुल। आई अंडरस्टैंड जो एक्सप्लोरिंग योर सेक्सुअलिटी वाला थॉट होता है, दैट डज नॉट वेट फॉर यू टू टर्न 18, वो पहले से ही आ जाता है, 16 साल की उम्र से, 17 साल की उम्र से आ जाता है। बट इफ वी आर माइंडफुल अबाउट दिस दैट वी हैव टू वेट टिल 18, देन अब्यूज कम होंगे। There's a video. इस वीडियो में क्लास में क्वेश्चन है। I would like everybody to answer that question and then we move forward. There's no audio. I can explain the video to them if there's no audio.
साल की है और उस 16 साल की लड़की का बॉयफ्रेंड है 30 साल का एंड दे आर इन अ रिलेशनशिप। ये तब से चलता आ रहा है जब लड़की 11 साल की थी, तो कितने साल हो गए? 5, और लड़का था 25 साल का। तो अब प्रॉब्लम ये है कि उसकी तो वो फ्रेंड है, तो वो कंप्लेंट करे या ना करे, पेरेंट्स को बता के देख लिया, पेरेंट्स ने घर से भगा दिया कि देखो यहाँ से हमारा बच्चा सुरक्षित है, तुम चुप रहो। सो द क्वेश्चन इज, अब इसको रिपोर्ट करना चाहिए या इग्नोर करना चाहिए? रिपोर्ट करना चाहिए, बट उससे उसका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा उसकी फ्रेंड के साथ, राइट? बट उसकी लाइफ भी तो खराब, उसकी फ्रेंड की लाइफ भी तो खराब हो गई है ना। Right. But when we talk in reality, so what do people do? They, right? Why she should report, of course. Why should she report? Because the law says that we all are accountable. We all are responsible. And there is an option of anonymous reporting. Do you know what anonymous reporting is? Sorry? तो हमारी मेंटालिटी क्या कहती है कि मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए, मैं क्यों इस झंझट में पड़ूं, मुझे क्या लेना देना, राइट? तो उस मेंटालिटी को भी सैटिस्फाई करता है ये लॉ, व्हिच सेज कि आप कुछ मत बताओ अपना, यू जस्ट रिपोर्ट इट, राइट? आप सिर्फ रिपोर्ट कर दो, आपका नाम पता हमें कुछ नहीं चाहिए, आप रिपोर्ट कर दो ताकि बच्चे को बचा सको। Let's Yes, please, Cantu, please sit down, Cantu. Please sit down. Who said you to get up and move out? It's okay, sit down. I also know it's break time. Yes, please sit down. Saksha, please sit down. let's talk about other forms of abuse. अभी जो हमने बिहेवियर्स देखे उसमें मैं डायरेक्टली बच्चे के साथ कांटेक्ट में थी, फॉन्डलिंग करना, बच्चे को प्यार से बुलाना, बिठाना, आपको लंच के लिए हाफ एन आवर दिया जाएगा आफ्टर दिस ओवर। प्लीज वेट। तो अब हम बात करते हैं उन सॉर्ट ऑफ अब्यूज की जो डायरेक्टली नहीं होता, जो इनडायरेक्टली होता है। इनडायरेक्टली से मेरा मतलब है कि मैं अगर यहाँ बैठी हूँ तो मेरी वजह से किसी बच्चे के साथ अब्यूज हो रहा है। कैन यू इमेजिन ऑफ सच बिहेवियर्स? ऐसे कौन सी चीजों की वजह से मैं इनडायरेक्टली किसी बच्चे को अब्यूज कर सकती हूँ? कोई कुछ बोलना चाहेगा? Have you heard of pornographic content, blue films? Right? अगर उसमें कोई बच्चा काम कर रहा है और वैसी फिल्म्स मैं देख रही हूँ या मैं किसी के साथ
शेयर कर रही हूँ तो मैं उस चीज़ों को बढ़ावा दे रही हूँ, और जब मैं अगर उस चीज़ को बढ़ावा दे रही हूँ तो मेरी वजह से किसी न किसी बच्चे को उस मूवीज में काम करना पड़ेगा। डू यू ऑल एग्री? राइट? So when it comes to indirect sort of behaviors, Let's stand to at the back. Please maintain the decorum and please behave yourselves. Don't provoke us to take any disciplinary action against you guys. so any sort of producing or owning the pornographic content जिसमें बच्चे involved है is abuse to the child. और कौन से आ सकते हैं? साइबर क्राइम. So it's not connected. So one sort of indirect साइबर क्राइम. स्क्रीन के पीछे बैठ के किसी को भी गाली देना, किसी के साथ भी बदतमीजी करना इज वेरी इजी. डू यू वांट टू से समथिंग? ओके. तो बच्चों के साथ साइबर क्राइम करना इज आल्सो अ पार्ट ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज. राइट? साइबर क्राइम के बहुत बिहेवियर्स होते हैं, जैसे स्टॉकिंग, फेसबुक पे रिक्वेस्ट करना, इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट करना, स्नैपचैट पे ऐड करना, ट्विटर पे बार बार लिंक करना. ऑल ऑफ दिस स्टॉकिंग का मतलब होता है पीछा करना. तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पीछा करने का मतलब होता है बार बार रिक्वेस्ट भेजना या बात करने की कोशिश करना. देन साइबर बुलिंग, किसी ने कोई फोटो डाली तो वो लिख देना कि मोटी, जी ये क्या कपड़े पहने हैं, अगली. ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो कि बुरा किसी को डिमोटिवेट कर दे या किसी का मोरल डाउन कर दे, वैसे कमेंट्स करना इज नोन एज साइबर बुलिंग. Then obviously we have gone through pornographic content. Sexting. What is sexting? Texts that are sexual in nature, जिसको हम बोलते हैं sex talks. Again, there is very deep question there. Two people who are adults with consent doing sexting, is it okay? Yes? Okay. One adult, one child doing sexting, is it okay? No. Two children sexting? No. Sexual harassment जो ऑनलाइन हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल किसी से सेक्सुअल फेवर मांगना, किसी बच्चे से सेक्सुअल फेवर मांगना, मीन मटीरियल, डबल मीनिंग जोक्स बच्चों को भेजना, ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर साइबर क्राइम. और साइबर क्राइम को कहाँ रिपोर्ट करते हैं? cybercrime.gov.in. ओके. अब हमने सारे तो बिहेवियर्स देख लिए, बट इन रियलिटी हम करते क्या है? What do we do? We know that we are accountable, but हम रियलिटी में क्या करते हैं? It's a video basically. I guess ये नहीं चलेगा.
आपको साउंड नहीं आएगा, बट दैट्स ओके। इस वीडियो में यही पूछा जा रहा है कि व्हेन इट कम्स टू रियलिटी तो हम क्या करते हैं। So, मान लो कोई लड़की अपनी मम्मी के साथ मार्केट गई है और उसको टिपिकली 4 लड़के घूर रहे हैं, तो उसने अपनी मम्मी को बोला कि मुझे वो लड़के घूर रहे हैं, तो उसकी मम्मी क्या करेगी? एनीबडी? कभी इसके साथ ऐसा कुछ? हाँ, वो इग्नोर कर देगी। या फिर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ तो एक बार ऐसा हुआ था कि 8:30 बज गए थे, मैं किसी कॉलोनी से जा रही थी और वहाँ पे किसी ने मुझे पटाखा तोड़ दिया। तो मुझे तो बड़ा बुरा लगा, मैं डर गई, मैं भाग के घर गई। मैंने बोला कि मम्मी ऐसे ऐसे बहुत बुरी तरीके से जल्दी सी टोन में चीप लड़कों ने मुझे ऐसे बोला। तो मैं मतलब सेड कि कल से 7:30 आ जाना घर पे, और उस रास्ते से नहीं अलग रास्ते से आना। अलग रास्ता बहुत लंबा है और अलग रास्ते से आकर मुझे 7:30 पहुंचना है। तो प्रेशर किस पे हुआ? मुझे प्रोटेक्ट करने का मेरे पर हुआ। और जैसे ही 8 बज गए फोन आने शुरू, कहाँ है, घर आ, फिर कल जैसा होगा फिर होएगी। अब मैं पहुंची 8:15 घर। मेरे साथ उस दिन भी नहीं हुआ, बट मैंने कुछ बोला नहीं। फिर जब बोला कि मेरे साथ ऐसा फिर से हुआ है, तो बोलता कल से तो नहीं जाएगी। तो यू अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटी वर्क्स। जिसके साथ गलत होता है उसको चुप करा दिया जाता है कि आप चुपचाप बैठ जाइए। बट हमें क्या करना चाहिए? हमें उसको बोलना चाहिए जो गलत कर रहा है, राइट? तो जब मैं कॉलेज में थी तो आई रिमेम्बर हम बैग लेते थे तो हम सामने रखते थे। हम अपने चेस्ट पे बैग रख के जाते थे कि हमें टच ना करें, और जिस दिन बैग नहीं ले जाना होता था उस दिन भी ले जाते थे। Why should I carry extra luggage? मैं वो extra weight क्यों उठाऊं to protect myself? Isn't it too much? तो बस में क्या हुआ एक बार कि एक लड़की थी छोटी सी और उसके पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी था। अधेड़ उम्र का आदमी मतलब 50-60 की उम्र का था, एंड वो उस लड़की को अनकंफर्टेबल फील करा रहा था। Yes, have a bag, please. It is a matter of another 5 to 10 minutes. क्या पता कल को तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हो जाए। Extra knowledge लेने में there is no harm when it relates to your safety and security. तो जब वो आदमी उसको अनकंफर्टेबल फील करा रहा था, तो मैं उस लड़की को भी बोल सकती थी कि आप बस से उतर जाओ बेटा, नेक्स्ट बस ले लेना, या आप इधर आओ मेरे साइड में खड़े हो जाओ। बट मैंने किसको बोला? आदमी को, कि भाई साहब क्या कर रहे हो आप? तो सबसे पहला चीज तो हमें उसको बोलना जो गलत है। दूसरी चीज, हमें बच्चों को सिखाना है कि आप मना कर सकते हो। वो लड़की मना ही नहीं कर पा रही थी, वो डिपेंडेंट थी मेरे ऊपर कि कोई तो बोले। बस में कोई खड़े होकर देखता है तो कोई तो बोलते मेरे लिए, ऐसा उस लड़की को लग रहा होगा। कल को मैं बस में नहीं होती तो वो शायद अब्यूज हो जाता, राइट? सो द पॉइंट इज कि हमें बोलना है बड़ों को जो अब्यूज कर रहा है, और बच्चों को सिखाना है पावर ऑफ नो। When I talk about power of no, so before that we have discovered this concept called Russian monkeys, कि जैसे गांधी जी के 3 बंधन कहते थे, ना कुछ देखो, ना कुछ बोलो, ना कुछ सुनो बुरा। लेकिन हम बोलते अगर आपने कुछ भी देखा, कुछ भी सुना, तो यू हैव टू से समथिंग। जैसे मैंने बोला कि भाई साहब क्या कर रहे हैं आप, राइट? So we all know the behaviors of child sexual abuse. We know the reporting mechanisms and we will prevent it before it
हाउ विल बी प्रिवेंटेड? बाय सेइंग नो, बाय सेइंग कि भाई साहब क्या कर रहे हैं आप, आई कुडंट से नो। Why couldn't I say no? क्योंकि मुझे बचपन में कभी सिखाया ही नहीं गया कि बच्चे भी मना कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अभी भी हेजिटेशन होता होगा मना करने में। कोई है ऐसा? कोई है? यू? कि मैं मना कर दूंगी या मैं मना कर दूंगा तो सामने वाला क्या सोचेगा, सामने वाला बुरा ना मान जाए, सामने वाला मेरा दोस्त है, राइट? इसलिए वी आर एसोसिएटेड पावर कि no, you have the power of saying no to somebody. Okay? When we talk about no, yes, कि आपका point of view matter करता है, आप मना करोगे उसको respect किया जाएगा. So we talk about the consent culture, right? जिसमें दोनों options हैं. आप मना भी कर सकते हो, आप हाँ भी बोल सकते हो. So this is consent culture. Consent is as simple as tea. The point is कि चाय, जैसे आपके घर पे कोई मेहमान आया और आपने चाय पूछी और उसने बोला कि हाँ बना दो, तो आप चाय बना के ले आओगे कि ये लो पी लो, और वो पी लेगा। दिस इज ऑल ओके, राइट? नेक्स्ट सिनेरियो, चाय उसने बोला कि नहीं पीनी, आप नहीं बनाओगे, ऑल ओके। थर्ड सिनेरियो, चाय पीनी है, हाँ पीनी है, अच्छा मैं बनाता हूँ। अब मैं बनाने चली गई तो मैंने सब डाल दिया, अदरक, दालचीनी, सारे दालचीनी डलती है चाय में डलती है ना, सब डाल दिया। और जब मैं बनाने वाली थी तो उसने बोल दिया कि नहीं मुझे नहीं पीनी चाय। तो क्या मैं उसके मुंह में जबरदस्ती चाय डालती हूँ कि नहीं मुझे तो पिएगा? नहीं डालती ना। बट व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल एक्टिविटीज, लोगों की ईगो हर्ट होती है। एंड इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन जब मैंने बोला था सेक्सुअल एक्टिविटीज में से कंसेंट हटा दो, तो क्या बन जाता है? अब्यूज। तो यही होता है, अगर मैं चाय उसके मुंह में डाल दूँ वो भी अब्यूज है, बट हम ऐसे नहीं करते। तो when it is so convenient and when it is so easy to understand when it comes to a cup of tea, then why is it not easy to understand when it comes to sexual activities, right? सोचने वाली बात है ना। तो कोई चाय पीना चाहेगा मेरे साथ? अब आप सब साइलेंट है, तो मैं क्या इसको हाँ लूँ? क्या मैं इसको ना लूँ? What do you think? But not silence is acceptance. As per business law and Bharat, silence is acceptance. After acceptance, on the part of the board, you are not saying anything. Whether it's yes or no. अगर किसी ने कोई चुप है कोई क्वेश्चन के बाद, तो क्या उसकी चुप्पी को हाँ में लिया जा सकता है? लिया जा सकता है, लेकिन क्या लेना चाहिए उसको हाँ में? नहीं लेना चाहिए, राइट? अब मैंने तो इतना बोल दिया कंसेंट लो, सबसे परमिशन लो, पर बहुत तरीके से लोग परमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले अज्यूम यस। अज्यूम मतलब मेरे को खांसी हो रही है, मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, चाय तो ये लोग पी लेंगे मेरे साथ। दिस इज अज्यूम यस, कि मैंने अज्यूम कर लिया। दूसरा यस अंडर ड्यूरेस, मतलब प्रेशर में किया है। अब तो मैं मूवी पे भी आ गई, मैंने तो उसके साथ कॉफ़ी भी पी ली, हम तो रात भर चैटिंग भी करते हैं, अब तो रिलेशनशिप के लिए हाँ बोलना पड़ेगा। ऐसा होता है प्रेशर में आके, या फिर सोच के कि सब लोग कर रहे हैं तो मेरे को भी करना पड़ेगा। That is not the real consent. Real consent is all about the consent that you give out of your own will, right? Willingly अगर आप किसी चीज को हाँ बोल रहे हो, that is the consent we want. That is the consent we ask for, and that is known as informed yes. Okay? कि हाँ मुझे सब पता है कि मैं किस चीज के लिए हाँ बोल रही हूँ, किसको हाँ बोल रही हूँ, सब मुझे इंफॉर्मेशन है, तभी मैं हाँ बोल रही हूँ। There is a conversation of consent. Do you want to have X, Y, Z? और सामने वाले बोले yes. This is the conversation that you need to have when you ask for consent. इसके अलावा कोई conversation नहीं होनी चाहिए कि देखिए दोस्त की, मेरा दोस्त की, देखो चाय पीनी पड़ेगी, ऐसे तो हाँ बोलेगा, right? Next question is, can yes become a no? अगर मैंने बोल दिया
तो क्या मेरे को अगर मन नहीं करा मूवी पे जाने का तब भी जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने यस बोल दिया?